5 pillars of a good answer. एक अच्छे आंसर के 5 पिलर हैं. The first pillar is the detail and boundary of the answer. So this is the question I have. तो इस क्वेश्चन का डिटेल बाउंड्री क्या है? I'll just talk about 5 food inflation, the reasons, and the effectiveness of monetary policy. That's all. Nothing more, nothing less. So you have to write what is needed. Write what is. Don't tell me Mahabharata and Ramayana here. I don't have time for your, crap. I'm an examiner. I don't have a time. आपने जितना स्ट्रक्चर लिखा है, remember your answer copy will judge your who you are. What do you write? Just write what exactly UPSC is asking. Reasons for high food inflation. Is RBI's policy effective? Answer is no. 1, 2, 3. Why not effective? These are the reasons. Maybe 2 lines of way forward. What measures can be taken to make it effective? So here fiscal measures or government measures, administrative measures can help to contain the supply side issues. This is the requirement of the question. The second is ratio and equilibrium. Very important. Ratio and equilibrium. So here I talk about the dimensions of the answer. Dimensions of the answer. The sub parts of the answer. For example, ये question लेते हैं. So it has 2 parts. The high food inflation causes, and second is your comment on the commentary देना है monetary policy की effectiveness पे. Monetary policy effective है या नहीं है? The answer is no. Monetary policy cannot address the food inflation because food inflation are countered by other factors. So I have 2 parts of the question. So half my answer would be on the first part, second answer would be on the second part. Now इसमें एक और चीज होता है. Many times you have to have a bias here. What if the statement is right? So let's say आपको 2 पोल पोजीशन पे आपको एक डिसीजन लेना होता है. Many times, for example, if I say first past the post versus proportional representation, तो इंडिया के लिए कौन ज्यादा इफेक्टिव होगा? First past the post or proportional representation? हाँ? First past the post. क्यों इफेक्टिव है? Because it is working. First past proportional representation complex है, नहीं समझ में आता है. We have countries like Israel, countries like Nepal. कभी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती है वहाँ, कभी गवर्नमेंट बनती ही नहीं है. स्टेबल गवर्नमेंट is a mirage there. क्यों? Because proportional representation है. आज तक की इंडिया की हिस्ट्री में शायद एक ही 2 बार हुआ होगा जब एक पॉलिटिकल पार्टी को मोर देन 50% वोट मिला होगा. इन द हिस्ट्री ऑफ 80 years of India's independence, 79 years of India's independence. तो फिर तो कभी इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट बनती ही नहीं कभी. इफ यू फॉलो द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. तो फर्स्ट पास द पोस्ट. तो अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है कि यू हैव टू डिसाइड बिटवीन फर्स्ट पास द पोस्ट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, तो यू विल से नो फर्स्ट पास द पोस्ट इज मोर इफेक्टिव फॉर इंडिया. फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब जो वोटिंग देते हैं हम लोग, वोटिंग करते हैं, जो द विनर टेक्स ऑल वाला अप्रोच होता है. तो सिमिलरली इफ आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव टू गिव अ 2 पोल पोजीशन पे आपको डिसीजन देना है कि भाई ये करें या ये करें. इफ इंडिया इज डूइंग एक्स एंड इट इज इफेक्टिव, माई बायस विल बी टुवर्ड्स एक्स. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो दिस इज द रेशियो इक्विलिब्रियम. द थर्ड जो आपका होगा दैट इज लैंग्वेज एंड फ्लो. वेरी इंपॉर्टेंट. आपका लैंग्वेज एंड फ्लो अच्छा होना चाहिए. लैंग्वेज मीन्स हियर आई वांट टू नो ग्रामर, spellings, your articulation, ठीक है. इंट्रोडक्शन आपने सिंपल 2 लाइन में लिखा. इफेक्टिव 2 lines, 3 line स्टेटमेंट, वेरी ब्रीफ टू द पॉइंट. नाउ हियर आई हैव टू मेक एन एफर्ट. प्रैक्टिस करना होगा बिकॉज नॉर्मली वी हैव अ हैबिट ऑफ वर्बोसिटी. हम ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं. दैट इज अ ह्यूमन ट्रेट, नेचर. जो पूछा जाएगा वो उसके अलावा भी सब कुछ बताएंगे. UPSC will not reward you on that. So third is your language and flow. Check your answer. Do you have the language? पढ़ने में अच्छा लग रहा है? Does it have grammatical mistake तो नहीं है, spelling mistake तो नहीं है, punctuation, comma, full stop, everything is important. As an examiner I am checking it and if these things are good it will help me. अगर weak है तो इस पे work करेंगे. More than 90% people don't know how to write answers. Language flow उनका weak होता है. More than 90% people, everybody. So I have to make a conscious effort. 3 months में improve हो जाएगा. 15 days,
पर 15 मिनट्स पर डे आपको इन्वेस्ट करना है अपने लैंग्वेज फ्लो पे. विद इन 3 months योर आंसर विल बी टॉप नॉच. ओके, देन द फोर्थ, objectivity. Very important. Your answer should be objective. What do you mean by objectivity? Objectivity means use of fact, data. अब यहाँ हमने दिया ना, हमने data दे दिया, fact दे दिया. I give examples. You can give fact data. How much was the high inflation? Food inflation was 10-11%. Vegetable inflation was 42% last year. ठीक है, तो आपने डेटा पुट किया, कोट किया. Effectiveness of monetary policy. As per RBI monetary policy report, 1%, हर 1% रेपो रेट के हाइक पर फूड इन्फ्लेशन सिर्फ 0.08% कम होता है. दैट मीन्स इट इज नॉट इफेक्टिव एट ऑल. इफ यू हैव सच डेटा, आपके तर्कस में अगर बाण होंगे ना तभी मजा आएगा. बाण चलाओगे तभी तो काम होगा ना वॉर का. तो यू नीड टू हैव योर डेटा, फैक्ट्स, कोट, एग्जाम्पल्स. तो डेटा फैक्ट इकोनॉमी में, पॉलिटी में आर्टिकल्स, केस लॉज, examples, instances. In ethics, quotes, real life examples. ये आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करके तैयार करना होगा, उनको हमेशा रिवाइज करते रहना होगा. अपने रिवीजन में ब्रिंग दोज अप्रोच इन योर रिवीजन अप्रोच. रिवाइज योर फैक्ट्स, रिवाइज द डेटा. और वो याद नहीं करना है, जस्ट रूटीन वे में आप उसको मल्टीपल टाइम्स को हिट करिए. ऑटोमेटिकली इट विल गेट इनग्रेन्ड इन द अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, देन द लास्ट पिलर इज, अच्छा ये यूज ऑफ फैक्ट एंड डेटा. फैक्ट एंड डेटा, कोट, एग्जाम्पल्स, केस लॉज. ठीक है, पॉलिटी का आंसर लिख रहे हो तो आर्टिकल लिखा होना चाहिए. एंड द लास्ट पिलर इज very important, presentation. How do you present the answer? Structure, introduction, body, conclusion, sub headline, key headline, sub headline, key points, keywords को underline करो. Start your points with sub key points, उसको underline करो like this. Supply chain disruption, adverse climatic event, okay, global factors, geopolitical factors, high rising input cost या high input cost, okay, MSP effect. ऐसे करके हम डालेंगे structural constraints. So these are, now when you are studying, make sure that कि आपके points में, आपके revision में, notes में, I'm sure यहाँ पर हैं ये सारी चीजें. You have to inculcate them and bring him the answers, okay. फिर यहाँ पर गवर्नमेंट का स्कीम हो गया, पॉलिसी हो गया, डेटा फैक्ट. Imagine yourself, imagine yourself that you are evaluating the answer. और ये आपके सामने ऐसा आंसर आ जाए, आपको टाइम लगेगा इवेल्युएट करने में? Will it take time? वो पढ़ेंगे, ऊपर देखेंगे, अरे सब पता है इसको, टक टक टक. उसका अपना एक बेंचमार्क है. ओके, 1 2 3 4. सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6. ओके, 10 पॉइंट्स लिखा है. इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन है, राइट डेटा फैक्ट है. मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन सेंस है. हाईएस्ट मार्क्स 5 out of 10, 5 दे दो, चलो आगे बढ़ो. और वही कम लिखा है, अगर अच्छे से मेंशन नहीं है, स्ट्रक्चरिंग नहीं है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ. आई एम आस्किंग फॉर द पॉइंट. 5 तो मैं दूंगा ही नहीं, इवन दो वी हैव गुड रिटन गुड आंसर. तो ट्राई टू जज योर एफर्ट फ्रॉम एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मेक माई वर्क ईजी. मेरा काम आसान करोगे, मैं रिवॉर्ड करूंगा, राइट. आई एम ए हेल्पलेस सोल. ठीक है, तो दैट इज हाउ इट हैज टू बी. तो ये आंसर राइटिंग का अप्रोच आपको फॉलो करना है, एंड दिस विल डू रेगुलरली इन द क्लास. तो लेट्स स्टॉप हियर एंड नाउ आई विल, मैं आपके आंसर जो लिखे हैं उनको मैं